Good morning, class. So, let us discuss the left question answer which we were discussing. See, we already know that in this chapter there is a difference between what? Between the future and the current, you can say what is prevailing. Okay? The current classroom which you are having and the future what the children will have. So, in this contrast, we have discussed the message and the theme, everything. Now, let us complete today all the concept of it, question, answer, and scene extracts. Okay, hopefully, we will able to complete in this video. So, see the drawbacks also we have learnt, and here we have also learnt that human does not want any alienation. Alienation, that means he don't want that he should live alone. Like Margie, with the help of Margie, we have learned that she always misses the previous classroom because in that same peer group was there which she loved. She also would have thought that see how interesting, how attractive would have that classroom, that a teacher as a human being as a teacher would be there and we are sitting with our own peer group. So it is very special. So that shows that what we are having, we don't have that importance. Now let us go on. See. Now how does Tommy describe? Now, did Margie have regular days and hours for school? Yes, she was having. How does Tommy describe the old kind of school? That means whatever now it's prevailing current, that, okay, that is, you can say a special building is there where all kids study together. So to the school it is named as special building, and where hundred of students studying and playing together. They used to shout, laugh together in an open yard. So in this way he has described the school. Now, how does he describe the old kind of teacher? Tommy said the old kind of teachers was men who taught the student inside a special building. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. Okay, this is a simple way. But whenever you are writing the answers, just write in the simple way. In whichever class you are, just write the answer in simple language. That will be, you will get more marks because it is understood that you have made. So better try to make your answer yourself, because the answers which are made by you will get more marks. They show that you have more understood the chapter. The concepts are clear to you. So answer each in 2 or 3 paragraphs. See what are the features of mechanical teachers and school classroom that Margie and Tommy have in the story. In this, see, Margie and Tommy had mechanical teachers. See, the computerized teachers are there. Okay. And a machine is there in which you can see the ideas and everything are installed. The concepts are installed and then the machine explains. Do you think it has any feelings? No. The machine is not having feelings, but it is just explaining what we have installed in it. So, they had a large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. A large black screen was there in which questions were shown and asked. Okay. They had a slot in which students had to put their homework and test papers. See. In that slot was there in which students had to put their homework and test papers. Whatever the homework was given, in that they have to put, and question paper was given, so they have to answer them in that. Okay. They had to write their answer in punch board, and the mechanical teacher calculated the marks immediately. Yes, this benefit you were having.
This benefit you can get, that whenever you give your paper, on the spot checking is there and on the spot answers you can get your marks. Okay. So here the teacher, that means whatever the test papers are there, when you submit it in the slot, then the teacher immediately check it and get the marks. The schools were in their homes itself. There was no such special building, only the schools were at their homes only. They did not have any classmates. See, when at home it is there, that means classmates are not there. That is understood. When at home the teacher is teaching you, that means there are no classmates. There are no your peer group with whom you are sitting. So they learned geography, history and arithmetic. They had regular days and hours of school. Yes, the mechanical teacher that was teaching, their timetable was there and it was teaching with the timetable only. It was teaching daily also. And another thing, what is hours of school? That means like now your hours are there, like morning to afternoon, the same way. The students at that time were having the hours. Okay. Now Margie's school was right next to her bedroom. So that means, where is Margie's school? Of course, next to her bedroom. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturday and Sunday. See, only 2 days leave were there, Saturday and Sunday. Rest all days. Means her mother used to on the mechanical teacher, because her mother said that little girls learn better when they learn at regular hours. So her mother was having a thought that if regular school is there, and at the same time, so her mother was just doing the as you can say your school is working, the time is fixed, the same way her mother was, मतलब उसकी मदर उसी टाइम पे उस मैकेनिकल टीचर को ऑन कर देती थी और उसी टाइम पे उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता था. ठीक है, क्योंकि उसकी मदर ये मानती थी कि जो अगर रेगुलर टीचिंग होती है तो हम ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है और गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं. So why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have fun? Now Margie hated school क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैकेनिकल टीचर वॉज देयर यूज टू टीच, एंड अ मैकेनिकल टीचर इज only teaching whatever the knowledge it is, you can say whatever the knowledge that is fitted in it, that only it is teaching. So, and another thing, she's not sitting with the same peer group or in a building, so she was not having a fun. It was just in her home only, so she was hating the school. So Margie hated the school because it was not fun. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. The time period is fixed in which the mechanical teacher was teaching. Recently, she had been doing badly in the geography test and her mechanical teacher had been giving her. See, when she was she was not good in geography, then her mechanical teacher was giving more tests. Means they were not finding any solution that what's the problem is, why her marks are lacking. No, they used to just give more tests so that she will improve. So her mother was not happy with the performance and sends for the country इंस्पेक्टर. जो कंट्री इंस्पेक्टर को उसने भेज दिया था, उसकी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी वीक परफॉर्मेंस से. एंड इट मीन्स शी वॉज नॉट accepting that the mechanical teacher's standard is high according to her.
सो नाउ शी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। उससे लगा था कि मैकेनिकल टीचर को जो इंस्पेक्टर है वो ले जाएगा। शी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन द कंट्री इंस्पेक्टर मैनेजेस टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी सॉ डेट जो कंट्री इंस्पेक्टर है उसने सारे पार्ट्स उसके इकट्ठे करके उसको वापस वैसे ही कर दिया। The part that she hated the most was inserting the homework and test papers in the slot। और सबसे ज़्यादा उसको गंदा लगता था, you can say the part which she never most disliked, that was the part of the test and the homework। Suppose if you are getting daily your classes only and no homework, you will love to come to school, है ना। लेकिन वो जो मैकेनिकल टीचर था बेटा वो होमवर्क एक लिमिट के बियॉन्ड देता था, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, दैट्स वाई। So she did not like the fact that she had to write her answers in a punch code। और उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं थी कि वो सारे आंसर्स जो है वो एक पंच कोड में लिखे। She thought that the old kind of school must have been fun as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the school। देखो बेटा, आई थिंक इन दिस कोविड आपने सबसे ज़्यादा स्कूल को मिस किया होगा, बिकॉज जो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठते थे, उनके साथ मस्ती करते थे, वो एक अलग ही चीज़ थी। वो ही इमेजिन कर रही थी कि जब उसने ये बताया था कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और टीचर पढ़ाती है, तो उससे वही लगा था कि वो नेबरहुड की उसने इमेजिन किया था कि नेबरहुड के सारे बच्चे एक जगह बैठे हैं और ठीक है, और वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उसने वो वाला फन जो है उसने याद किया था। तो डेट्स वाई उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था कि पहले स्कूल बहुत अच्छे थे। सो शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो उसकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई थी कि ओल्ड स्कूल में अगर ऐसा था तो फिर वहाँ पे भी सारे बच्चे मिलके बैठते होंगे और फिर वो भी घर पे जाते होंगे एक साथ। नाउ दे वुड लर्न द सेम थिंग्स। तो वहाँ पे भी वो सेम थिंग ही लर्न करते होंगे। एंड कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो देखो उसको ये लग रहा था कि वो एक दूसरे को हेल्प भी करते होंगे, होमवर्क भी एक साथ करते होंगे और उसके बारे में बातचीत भी करते होंगे और एक्स्ट्रा बातें भी करते होंगे। सो ऑल्सो द टीचर्स वर पीपल। और भाई टीचर्स भी पीपल थी। सो ऑल दिस एक्सपेक्ट मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इसलिए उसको लग रहा था कि जो भाई टीचर्स भी पीपल ही थी, तो उसको यही लग रहा था कि वहाँ पे कुछ भी मशीन जैसा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फन होता होगा। एंड डैट इज़, आप देखो बेटा, आप स्कूल में आते हो, कितनी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, हंसते हो, बोलते हो, ठीक है, लड़ाई भी होती है बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। और अगर आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आया तो अगर आप अपने फ्रेंड से समझोगे, जिसको आ गया है टीचर का, उसको आपको बहुत ही अच्छे से वो कंसेप्ट आ जाएगा। So do you agree that Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons। देखो बेटा बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि स्कूल्स जो आज के हैं यहाँ पे एक सेम पीयर ग्रुप के साथ आप बैठते हो, तो क्या होता है बेटा उसमें जेन्युइन है, जो आपको प्रॉब्लम है वही उसमें भी प्रॉब्लम होगी। एक मशीनरी जिससे हम पढ़ना, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो हमारा कंसेप्ट नहीं समझेगा, ठीक है। जो एक टीचर समझ जाएगा आपका एज और फिर आपके एज के अकॉर्डिंग, देन देखो बेटा
अगर एक टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसी टॉपिक को हम किसी और वे से भी समझा सकते हैं। ये उसे बहुत अच्छा, और फिर साथ साथ पढ़ते हैं ना हम तो बेटा हमारे जो स्टडी है वो बोरिंग नहीं होती बल्कि इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट थिंग इज जब हम साथ में होमवर्क करते हैं, पंच कोड से देखो, पंच कोड तो हमें बोरिंग बना देता है, लेकिन हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं ज़्यादा, जो आप कह सकते हो कि साथ में होते हैं, बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो रिलेशनशिप भी हेल्दियर बनती है, हम भी थोड़े फ्रेश फील करते हैं और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स भी ज़्यादा बनता है और हमारा ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, जो बॉडी का वर्कआउट है वो ज़्यादा होता है। सो लर्निंग कंसेप्ट्स भी बढ़ते हैं। ओके, और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टीचर से डिस्कस कर सकता है ना। लेकिन जो प्रीवियस स्कूल्स जो इसमें स्कूल्स दिखा रहे हैं उसमें तो जेन्युइन है, डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही कंप्यूटर है, वो वैसे ही समझाएगा जैसे आपने पहले उसने समझाया था, सेम वे ही समझाएगा, कुछ डिफरेंट तो होगा ही नहीं। ये चीज़ थी बेटा, ठीक है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती ना, इसीलिए। तो yes, I agree, schools today are more fun than the school in the story. In the story there is no interaction among students regarding studies. Studying and answering questions seems to be boring idea, and doing homework without anybody's help, किसी की बिना हेल्प के, and writing them in a punch code, बहुत ही ज़्यादा you can say boring, और अगर आप वो करें तो वो ब्रेन आपका यूज़ बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ऑल्सो बी ड्रेनिंग। मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे हैं ना आपस में खेल के बेटा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ऑफ ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे गो टू द स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ज़्यादा समझते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं। इट इज़ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लिसनिंग टू टीचर एक्सप्लेनिंग लेसन्स इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग देन रीडिंग द एंटायर लेसन्स ऑन अ मैकेनिकल कंप्यूटर। भाई देखो, एक टीचर से पढ़ना एक अलग बात होती है, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बजाय जो एक कंप्यूटर आपको पढ़ाता है। एंड अनदर थिंग इज़, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो, लेकिन कंप्यूटर से क्या पूछोगे, वो आपको उसी तरीके से समझाएगा। तो इफ स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट और इन द होमवर्क, इट कैन आस्क टू टीचर एंड अदर किड्स। मान ली टीचर से नहीं समझना, कोई बात नहीं, आप अपने साथ वाले बच्चों से तो समझ सकते हो, वो भी आपको समझा देंगे। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस विद अ मैकेनिकल टीचर। तो एक मैकेनिकल टीचर के साथ में वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो प्रोग्राम उसी तरीके से होती है। सो इट इज़ ओनली प्रोग्राम टू टीच इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसी तरीके से उसे पढ़ाने की एक हैबिट होती है। हैबिट कह सकते हो या ये कह सकते हो कि उसी तरीके से उसको इंस्टॉल किया गया होता है। सो द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्ज़ाम्स, और एक एक्साइटमेंट होती है जब आपको आपके मार्क्स मिलते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई कितने हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एक मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ते हैं तो ऑन दी स्पॉट होती है, तो फिर वो क्रेज सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो फाइनल द फ्रेंड्स, और फिर आपस में फ्रेंड्स के साथ मार्क्स भी देखना कि तुम्हारे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरा ये आंसर था, तुमने भी यही आंसर लिखा है, फिर इतने मार्क्स कम, मेरे कहाँ कटे। तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें बहुत फ़र्क होती है बेटा। So finally, the friends that you make at school are most probably the friends that you will तो देखो बेटा, जो आप
फ्रेंड्स जो आप स्कूल में बनाते हो, ठीक है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं हमेशा के लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। और जो वेरियस क्वालिटीज़ जो आप स्कूल से सीखते हो, ठीक है, वो जैसे शेयरिंग करना हम स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, एक साथ रहना स्कूल में सीखते हैं, चाहे आप फैमिली में रहते हो बेटा, लेकिन जो एक साथ रहना ना वो हम स्कूल में ही सीखते हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग अलग होता है, और हम उनके साथ रहना सीखते हैं। प्लस रिस्पेक्ट करना जो आप टीचर्स की सीखते हो, टीचर्स का कहना मानना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं स्कूल्स में। हमें स्पोर्ट्स हम सीखते हैं, अदर एक्टिविटीज़ सीखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें सीखते हैं कि पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप सीखते हो। सो अब ये एक्सट्रैक्ट्स देखो बेटा, ये एक्सट्रैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक के लाइन्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर की लाइन्स हैं, और नीचे इसके क्वेश्चंस हैं। Beta, if you have done the question answer, then just only need to listen it, okay, and understand it. Now, Margi even wrote about it that night in her diary. The page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was very old book. Margi's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper." क्योंकि अब तो वो उसके थ्रू देते हैं, डेट मीन्स देर इज़ अ मैकेनिकल टीचर एंड ऑल, पंच कोड एंड ऑल, टाइपिंग वे में हो सकता है। तो पहले उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि हम पेपर यूज़ करते थे। सो व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? एक तो पेज, डेट और डे लिखी थी, ठीक है, और फिर उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। द ओल्ड बुक वॉज फाउंड बाय, ओल्ड बुक किसे मिली थी? टॉमी को, ओके, एंड मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी द बुक वॉज, मार्गी सरप्राइज क्यों थी? क्योंकि उस टाइम स्टोरीज जो थी वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी, ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट था उसके लिए। स्मॉल का सिनोनियम क्या है बेटा? लिटल। Now it was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words and stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And when they turned back to the page before, it was the same words on it had when they read it the first time. Now they turned the pages. Who are they? They इसके अंदर कौन है बेटा? इसके अंदर है मार्गी और टॉमी, ओके, ठीक है। एंड वाई द पेजेस ऑफ द बुक्स वर येलो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी बुक, दैट्स वाई। डिड मार्गी सी द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम? उसने फर्स्ट टाइम देखी थी, येस, क्योंकि वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे वर्क करते थे। और द वर्ड विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस के साथ कौन सा वर्ड होता है बेटा? क्रिंकली, ओके। So maybe he said, nonchalantly, who does he refer to? किसे कहा गया है इसमें? ही कहा गया है टॉमी को। एंड where was Margie's classroom? मार्गी का क्लासरूम कहाँ था बेटा? नेक्स्ट टू हर बेडरूम।
व्हाट वॉज द रूटीन ऑफ मार्गी टीचर का क्या रूटीन था, एक्सेप्ट सैटरडे संडे बाकी सारे दिन उसको पढ़ाना। और अपोजिट रेगुलर का क्या अपोजिट होता है, इरेगुलर। So Tommy looked at her with her superior eyes because it's not our kind of school। क्योंकि उसने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे उसको एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे जो पेजेस और सब में तो होता ही नहीं था वर्क, तो वो टोटली डिफरेंट था। और अपने पीयर ग्रुप के साथ में बैठना, अपने एज ग्रुप के साथ में बैठना, वो टोटली डिफरेंट टास्क था। सो टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज। हु डज हर रेफर टू, किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, मार्गी को, उसकी सिस्टर को। एंड हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स, ही कौन है, टॉमी। ओके, आवर काइंड ऑफ स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ, उसमें क्या स्कूल है, वो उनका स्कूल है एक फ्यूचर क्लासरूम विद मैकेनिकल टीचर। नॉट ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स इन अ सुपीरियर वे, कौन सा वर्ड है, लोफ्टली। ना नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बेटा, द एक्सट्रैक्ट यू कैन, ओके आई विल रीड इट फास्ट। एक्सट्रैक्ट बेटा, Margit did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy। अब वो उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जहाँ पे, तो उसने वो इमेजिन किया था कि नेबरहुड के बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, ठीक है। सो विच स्कूल इज मार्गी थिंकिंग अबाउट, कौन सा स्कूल थिंक कर रही है, जो उसके ग्रैंडफादर का है। नाउ वट इज़ द एडवांटेज ऑफ द ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल का क्या एडवांटेजेस है बेटा, सेम पीयर ग्रुप के साथ में हम बैठते हैं और हमारी बेटर लर्निंग कंसेप्ट होती है। और कौन से वर्ड का मीनिंग है, ब्रीथिंग आउट डीपली, साई। ओके, किड्स कहाँ से आते हैं बेटा, नेबरहुड से। सो सी नेक्स्ट देखो आपका, नो वट इज अ वेस्ट फॉर टॉमी, टॉमी के लिए क्या वेस्ट था, टू प्रिंट बुक्स ऑन पेपर। वट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड मार्गी और टॉमी, उनके स्कूल में कैसे होती थी, मूविंग बुक्स होती थी, टेलीविजन स्क्रीन पे होती थी। एंड वी कैन स्क्रॉल ऑन पेज बाय पेज, हम स्क्रॉल, जैसे स्लाइड शो रिप्रेजेंटेशन होता है द सेम वे। न टॉमी और उनकी एज है बेटा, ठीक है, मार्गी की 11 और टॉमी की 13। ओके, और टॉमी को वो बुक कहाँ मिली थी, एटिक रूम में, एक स्टोर रूम में। So I hope till here it is clear to you. So now tomorrow we will do the left portion, and tomorrow hopefully we will able to complete this. Okay, then afterwards we will discuss the chapter. So if you have not done then beta, then complete it. Okay.
complete all these question answers yours.